میرے آقا نعمت دریا احمد اعلیٰ حضرت ایک بات شیئر میں فرماتے ہیں، ان کا وہی حال ہے، اس میں سمجھ لو رضی اللہ تعالیٰ. کفر منکر یہ پڑھا، کفر منکر یہ پڑھا، جوش تعصب آخر سبحان کہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا. اور کون کہاں گیا؟ گیا کہ بہار گیا کہ بہار گیا کہ گیا یا یو پی گیا. ہمیں تو یہ بتا گیا رضا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. اللہ ہم دنیا سے مسلمان گیا. اور اے نجدی، امریکہ کے ریال ڈالر پہ پلنے والے ہندوستان کے غداروں، سنو، پہچان لو شیر ہندوستان کا لہتے جگر تمہارے سامنے بیٹھا ہے. مظہر اعلیٰ حضرت کا غلام، مشاہد ملت کا نام لیوا بیٹھا ہے. یہ عورتوں والی باتیں کہیں اور کرنا. دیش کے غدار ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستانی چور ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان سے بھیک مانگنے والے ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان کے آتنکوادی ڈرتے ہیں پولیس سے. لیکن تمہیں پولیس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم. جو کام پولیس کرتی ہے وہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے. کیونکہ یہ دیش نظام الدین کا ہے، عبیس الدین کا نہیں ہے. یہ دیش اکبر الدین کے باپ کا نہیں ہے. یہ دیش اتحاد المسلمین کا نہیں ہے. یہ دیش اسد الدین کا نہیں ہے. یہ دیش اعظم خان کا نہیں ہے. یہ دیش وہابی امریکہ کے ایجنٹوں کا نہیں ہے. یہ دیش معین الدین کا دیش ہے. یہ دیش علاء الدین کا دیش ہے. یہ دیش نظام الدین کا دیش ہے. اور میاں جو سیوا پولیس کرتی ہے جزئی طور پہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے، کیونکہ پولیس سے بھی پاکستانی ڈرتا ہے اور خواجہ کے غلام سے بھی پاکستانی. ممبئی کے پولیس کمشنر کا اسٹیٹمنٹ میرے پاس رکھا ہے. ہم ہندوستان میں چوڑیاں پہن کے نہیں چلتے ہیں. ڈرو تم، کیونکہ تمہارے ابا دادا دیش کو بانٹ گئے. ہم کیوں ڈرے؟ نہ ہمارے باپ نے پاکستان کو مانا، نہ ہمارے بڑے ابا نے مانا، نہ ہمارے جدی امجد نے مانا. تو میاں یہ تو شکر ادا کرو اور احسان مانو مظہر اعلیٰ حضرت کا، ورنہ تم بھی پاکستان میں کرکٹ کھیلتے ہوتے. یہ جو رہنا نصیب ہندوستان میں ہوا سکتا ہے پیلی بھی شریف آئے. تو خواجہ والا جب سچا ہے تو سنو اسی ہندوستان کے پولیس کمشنر کا بیان. اسی ہندوستان کی آئی بی انٹیلیجنس کا چیف مجھے ڈائریکٹلی وہ ایک میسج بھیجتا ہے، بھائی پروف بات کرتا ہوں، بھائی حوالہ بات کرتا ہوں، کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ یہ دیش عمران خان کے چھٹکوں سے نہیں چلتا ہے. یہ دیش ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ چلتا ہے. یہ دیش الیاس قادری کو جہیز میں نہیں ملا ہے. یہ بمبئی کسی کے باپ کا نہیں ہے. یہ بمبئی مردم ماہر کا کرم ہے اس بات میں. اور تمہیں معلوم ہے جب وہابیوں نے کہا درگاہ پہ نہیں جائیں گے، جب دردیوں نے کہا درگاہ پہ نہیں جائیں گے، تو مردم ماہر نے کہا تو نہیں آئے گا پولیس والوں کو بلائیں گے. ابھی تو نہیں آئے گا تو ہم کمشنر کو بلائیں گے. اور اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری وہابی رافضی کی، یہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، یہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، دہائی یا معیدی دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. تم کیا بچاؤ گے اس دیش کو بچانے والے؟ میں کھلے طور پہ میڈیا نوٹ کرے، ارے میاں ہماری تصویر تو تھانے میں لگا دو، پاکستانی بھاگ جائے گا. بڑی تمنا ہے تو لے لو اور دے دو. راتوں میں نیند نہ آئے تو دیکھ لینا، ریکارڈ کرو ایک جملے کو. میڈیا والے ہو کے آئی بی والے، اسی بمبئی ہندوستان کے اندر شیر ہندوستان کے دو غلاموں نے مولانا شمائل اللہ یا فقیر خان
कराची में मुशाहिदे मिल्लत 2 साल काफिर नाइक के खिलाफ एहतजाज करने वाले कौन थे? इस गद्दार हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले कौन थे? यही मौलाना शमाइल था। मौलाना सज्जाद से पूछो, कानपुर में जाके, लखनऊ में जाके गवर्नमेंट के लोगों से मिलके गृह मंत्रालय को लेटर भेज के, आज भी डॉक्यूमेंट्री बात कर रहा हूं, मेरे पास लेटर रखा है और ये कहा गया कि इसको रोको, ये देश का गद्दार है। पूना के स्टूडेंट, पूना के कॉलेज के लड़के, आज भी मैं बाई प्रूफ बाई नेम बता सकता हूँ, वो ये कहते हैं कि हमारा ईमान बचा, सदका है पीलीभीत वाला, हमारी जान बची, हम जेल में जाने से बचे, वो भी सदका पीलीभीत वाले का। लेकिन यहाँ इतना जरूर हिंदुस्तान की पुलिस से भी कहूंगा कि हशमती से हाथ में लाओ, 2.5 दिन में पाकिस्तानियों से आज की तारीख में देना चाहूंगा, लगाते रहना। मैं कहूंगा ख्वाजा का नारा लगाएंगे, तुम कहोगे पाकिस्तानी भगाएंगे। ख्वाजा का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, पाकिस्तानी भगाएंगे। हिंदुस्तान की मीडिया भी सुन ले, एलआईओ भी सुन ले। अभी चेन्नई, मद्रास, अभी इंटरनेशनल तौर पर जहां भी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैंने लोगों से यही कहा, अभी गृह मंत्रालय से तमाम लेटर वगैरह उनको जो भेजे, और हिंदुस्तान में हमने अभियान छोड़ दिया है कि हिंदुस्तान में किसी भी पाकिस्तानी को यहां पर रहने नहीं देंगे। और बहुत जल्दी हमने जो चीजें गृह मंत्रालय को भेजी हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को, उन चीजों को लेकर हम दिल्ली में अनकरीब, अभी तो हमने हिंदुस्तान का दौरा किया, साउथ का, चेन्नई का, तमिलनाडु का। और तुम क्या समझोगे यार, दरगाह पे जाने वाले पुलिस वाले हैं, दरगाह पे जाने वाले, जैसे यूपी का आप स्टेटमेंट बम्बई का देखो, मेरे पास रखा, बम्बई के लोग पीलीभीत शरीफ कहते बात सुनते चलो। इसी हिंदुस्तान के अंदर आपको मालूम होगा, जब मोमरा के कुछ नौजवान लड़के आतंकवादियों में चले गए थे, तो दुहाई लेकर वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास गए, पुलिस को दुहाई दी, पुलिस के पास गए, तो इसी हिंदुस्तान के एक पुलिस अधिकारी का बयान सुनो मेरी जबान से। उस पुलिस वाले ने कहा, मेरी समझ में नहीं आता तुम अपने बच्चों को क्या तालीम देते हो, मैंने जो जांच की है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, मुझे तो ये मालूम हुआ तुम्हारे बच्चे कभी इंग्लैंड की तंजीम को फॉलो करते हैं, कभी जापान की तंजीम को फॉलो करते हैं, कभी काफी नाइक को फॉलो करते हैं, कभी असदुद्दीन को फॉलो करते हैं, कभी अत्तार को फॉलो करते हैं, कभी पाकिस्तानी को फॉलो करते हैं। अरे तुम हिंदुस्तानी हो के इन गद्दारों के ही क्यों हो? जब हिंदुस्तान में ख्वाजा है, महबूब इलाही है, महबूब अलाउद्दीन साबिर कजरी है, आला हजरत है, वारिस पाक है, वो हिंदू अधिकारी कहता है अगर देश को और ईमान बचाना है तो वलियों के पीछे चलना होगा। जिसकी पॉलिसी क्लियर होती है वो मैदान में बोलता है। और सुन लीजिए कान खोल के, आप अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ, हमारी तमाम तहरीकात वो कानून शरीयत के अकॉर्डिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है। वो और लोग होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की एक मेंटेलिटी बता दूं, यहाँ की जनता में अक्सरियत ऐसे लोग होते हैं जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए औरतों वाली लड़ाई लड़ते हैं, लॉजिकल बात नहीं करते हैं, सिस्टम से नहीं आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसी हिंदुस्तान के बंबई शहर के अंदर सबसे बड़ी शख्सियत कौन सी है जिसने आज से 20 साल पहले कहा था, अरे बंबई के इमामों पाकिस्तान की तंजीम से दूर रहो, अरे बंबई के मौलवियों पाकिस्तान की तंजीम से दूर रहो, अरे गिरफ्तियों पाकिस्तान की तंजीम से दूर रहो। लेकिन दानवेती के लिए, मुर्गा पोती के लिए तुमने शेर हिंदुस्तान की ना सुनी, तो ना सुनी तो उनका क्या बिगाड़ा? तुम्हारा अंजाम मालूम है, तुम 20 साल से ये कहते रहे शराबी क्या है, शराबी क्या है, शराबी क्या है, शराबी क्या है। अब जब जेल में तुम्हारे हाथ में रकाबी आई तो शराबी मालूम हो। बहुत दिन तुम्हें वो दिन आने वाले हैं जो हम नहीं मिया, क्योंकि देश के लिए, ईमान के लिए हम न जेल से डरते हैं न पेड़ से डरते हैं, लेकिन हम ये कहते थे और कहते रहेंगे, हिंदुस्तान ख्वाजा का है, हम देश ख्वाजा का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, लिहाजा मैं इतनी बात कहना चाहूंगा और आप कान खोल के सुन लीजिए अच्छी तरह से। अभी हिंदुस्तान का मेरा दौरा हुआ, यूपी गवर्नमेंट के कुछ आईएएस अधिकारियों ने मुझसे पूछा और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने के साथ अलीगढ़ के लिए आप लोगों को क्या कहना है। हमने कहा जो बचे उनको भी जेल में डालो।
जो वहां पर हैं बच्चे उनको भी जेल में डाल दो। हमारी पॉलिसी क्लियर है, हम ये नहीं करते हैं कि अकेडमी के नाम पे चंदे इकट्ठे करने के बाद भिंडी बाजार बंद कराएं कि दिल्ली बाजार बंद कराएं। हम तो जबान बंद करा देते हैं, ना उसमें बोलने की ताकत रहती है, ना बोलने की ताकत रहती है, क्योंकि गुलाम उसके हैं, आशिक उसके हैं। तो तेरे आगे यूं है दबे रचे, तेरे आगे यूं है दबे रचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्मों में जान नहीं, बल्कि जिस्मों में जान नहीं। ये रस्सी चल तो जाती है मगर ऐसा नहीं जाती। बहरहाल हमारा सब्र भी इसलिए होता है कि अगर किसी को तौबा मिल जाए तो बहुत बड़ा सवाब है, हिदायत मिल जाए। हम कभी नफ्स को लेकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं, शरीयत की रोशनी में लड़ते हैं। आज भी कोई तौबा करता है, किसी का मुरीद हो छोटेगा कि बड़ेगा, लेकिन हम जब हक कबूल कर लेता है अपना भाई मानते हैं और हक के खिलाफ जाता है, अब्बा दादा का मुरीद हो, हिंदुस्तान और देश में ईमान के खिलाफ जाएगा, उससे हमारा कोई होता नहीं है। लेकिन जब अलीगढ़ पे बात आती है तो आप एक तरफा क्यों बोलते हो? जब आपको अकलियत जलाती है, जब आप अकलियत का वजीफा रखते हो, जब आप अकलियत की बात करते हो, सुनो, अकलियत हो या अक्सरियत हो, क्रिमिनल आतंकवादी आतंकवादी है, दहशतगर्द है। हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान का नारा लगाना होगा, हिंदुस्तान में रहते हो तो औलिया का नारा लगाना होगा। आला हज़रत ने मुजद्दिद आज़म ऐसे नहीं कह दिया कि हिंदू तक तेरा कायल है, जाओ आज भी माही की दरगाह पे चले जाओ। तुमको मालूम है कि पुलिस वाले भी चादर लेकर जाते हैं, वहां पर अधिकारी भी चादर लेके जाता है, क्योंकि उनका भी ये मानना है जो ईमान वाला है, जो हुसैन वाला है, जो करबला वालों का गुलाम है, वो अपनों का भी वफादार है, देश का भी वफादार है, देश का भी मानने वाला है। मैं अभी साउथ के दौरे से आ रहा हूँ, सरकार सैयदना कादिर शाह वली की बारगाह में हाजिर होती है, रज़ी अल्लाह तआला हज़रत सैयदना मूसा कादरी की बारगाह में हाजिर होती है। चलो हिंदुस्तान की दरगाहों का दौरा करो। मेरा ये स्टेटमेंट याद रखो, हिंदुस्तान की सुन्नियत इन औलिया के सत्ता है जो बची हुई है, इन बुजुर्गों का सत्ता है जो बची हुई है। मैंने क्या देखा, चेन्नई के अंदर, मद्रास के अंदर, वहां पर पुलिस वाले भी चादर लेकर आ रहे हैं, अधिकारी भी चादर लेकर आ रहा है, डॉक्टर भी चादर लेकर आ रहा है, अपने भी चादर लेकर आ रहे हैं, भाई भी चादर लेकर आ रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए, सरकार कादिर शाह वली की बारगाह में एक राजा, मेरे सरकार की हयात ज़ाहिरी की बात है, इतना बीमार था, जा बलब था, बिस्तर से लगा था, बीवी उसकी रोती थी, औरत रोती थी, दुआ के लिए लोग आते थे। हालात ये हुई, सरकार तशरीफ ले गए, हाथों को दुआ के लिए उठा दिया, उसके बाद एक फकीर को छत पे भेजा, कबूतर मंगाया और उससे सुइयां निकाल दी राजा का। एक वली की ये ताकत है, आने वाहिद में दुआ फरमा दी सुभान अल्लाह, तो वो राजा दीवाना हो गया। मुस्लिम राजा नहीं, हिंदू राजा। और उसके बाद मोहब्बत देखिए, उस हिंदू राजा ने आज भी नागौर शरीफ और जाके देख लो, और वहां मालूम कर लो जाने के बाद, बड़े नागौर शरीफ के अंदर तो आज भी बड़ा नागौर शरीफ सरकार सैयदना शाह कादिर वली रज़ी अल्लाह तआला, और मेरे आका का नारा क्या बारगाह का, या कादिर मुराद हासिल। सुभान अल्लाह। हाँ कहिए, या कादिर, या कादिर। वो हिंदू राजा कहता, सरकार अब आप जा रहे हो लेकिन दीदार नहीं हो पाएगा, तमन्ना ये है कि बारगाह में एक मीनार बना दो। सुभान अल्लाह। उस हिंदू राजा ने साउथ के अंदर 133 फीट का मीनार बनाया। हाँ, वलियों की चौखट बाबरों की मोहताज नहीं है, ये पाकिस्तानियों की मोहताज नहीं है। हाँ, उसके बाद वहीं से वो खड़े होकर उस मीनार का दीदार करता था, ज़ियारत करता था। आज भी जाके देखो मियाँ, आज साउथ की दरगाहों में हिंदू आ रहा है और दुनिया मांग रहा है, दुनिया मिल रही है।
दामन भर के दे रहे। गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, ये आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू तक तेरा ताई रहेगा बॉस। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि मैं चाहता था उसको बचा लूं किसी तरह, मैं चाहता था उसको बचा लूं किसी तरह, अफसोस उसने ही मुझको कातिल समझ लिया। अरे हमसे बात करोगे? हमारे सरकार ने तो यहां तक कानून सिखाया कि ये काले झंडे दिखाना, इससे एहतियात को मना किया, ये मार्केट मोहल्ले बंद करना, बाजारों को बंद कराना, गरीबों को कारोबार पे असर डालना, सरकार ने फतवा दिया, मना फरमाया। जब जब हुजूर मदद सरकार ने मोहब्बत और ईमान की लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान के बंटवारे की तारीख उठा के देखो कि आज भी तुमको कहना पड़ रहा है कि हजरत हक पे थे, ये मानना पड़ रहा है। और ये ना कहो तो जाओ फिर खेलो क्रिकेट, अगर ये ना कहो तो अंदर जाओ। हाँ, तो मालूम क्या वो हक को बोले सर पे चढ़ के बोल, यहाँ कोई हक की आवाज को दबा सकता है? क्योंकि ये नामे बात जानते हो, ये उसके शहजादे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, दिल में ख्याल है मियाँ इनका नाम दे दो तो भूत भाग जाए, शिफा मिल जाए, सुभान अल्लाह। और यही मुनासिबत, यही चीजें जहन में आई। एक तो ये कि अल्लाह उनके सब्र, रजा और बर्दाश्त, बुजुर्गों के सदके से सबको ईमान वालों को सदका अता फरमाए। पूरा घरबार करबला शरीफ ने कुर्बान कर दिया, उसके बाद भी उफ है, उसके बाद भी कोई सदा है, उसके बाद भी कोई किसी को बुलाया जा रहा है। अल्लाह से पुकार उठे, हर जगह कोई ना कोई बात लिखी, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, लेकिन शाने अहले बात की बात आई तो ये बात वो बात नहीं फरमाते। क्या बात रजा उस जमाने काने करम की, क्या बात रजा उस जमाने काने करम की, जहरा में गली जिसमें हुसैन और हसन लिहाजा ये बात आपसे कहना चाहूंगा, आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और आला हज़रत सरकार के इस मिशन पे रहिए कि मेरा दीन और मज़हब मेरी कुतुब से जाहिर है, उस पर कायम रहना अनफर्ज से अहम फर्ज है। कानून को हाथ में मत लीजिए, कानून के मुताबिक चलिए। और जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शेर के मानने वाले हैं कि जिसने इतने साल पहले पाकिस्तान को नहीं माना, तो हम दिखावे नहीं करते हैं बाजार बंद करा के। हाँ, जो हक वाला है वो चला जाए तो बाजार नहीं, जबान बंद हो जाती है। ये करम है सरकार मदद आला हजरत का, उनके शहजादियां अल्हम्दुलिल्लाह जहां चले जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, दुश्मन जो है वो तुम दबा के भाग जाता है। ये आला बता रहा था कि साउथ में आज भी चले जाओ, हज़रत कादिर शाह वली रज़ी अल्लाह अन्हु पाक में हिंदुओं का मेला लगा है। अरे तुम्हारे यूपी में देख लो बयाई शरीफ,
जय हो गाजी बाबा की, जय हो गाजी बाबा की, जय हो। बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सरकार बोले हम हिंदू को बुलाएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, अल्लाह वालों ने बुला के तबलीग की, हिदायत दी, समझाया। और मियाँ उठा के औलिया किराम की बारगाह देख लो, साउथ के अंदर तशरीफ ले गए। आज ये लोग बात करते हैं 2 पैसे 2 गाड़ी आ जाए, अरे ये जिसको दुनिया या रहमान कहती है, ये सब इसके घर में जो भी है उसका स्टेटमेंट जाके चेक कर लो, उनसे मालूम कर लो जो गद्दी नशीन है, वो कहता है इस बारगाह का सदका है। आलोचना फरमाते हिंदू तक तेरा कायद है या बॉस। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है, पुलिस भी सुन ले, LIO भी सुन ले, IB भी सुन ले। मैंने आज से कई साल पहले जो मुझे यूपी के एक IAS अधिकारी ने एक स्टेटमेंट भेजा था और उसकी अपनी रिपोर्ट थी IB की कि 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए काफिर नाइक विदेशों से लेकर आया है। तो हम सुन्नियों का मुतालबा है कि यहाँ का गरीब 20 साल मेहनत करके फ्लैट नहीं खरीद पाता है। ये अत्तारी मौलवी 4 दिन में फ्लैट कहाँ से लेते, जांच करो। ये अत्तारी मौलवी पाकिस्तानी मकान कहाँ से लेते? अरे पुलिस वालों जांच करो, हशमती तुम्हारे साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का नारा लगाएंगे पाकिस्तान। लेकिन याद रखना, मैं जब देश और ईमान के लिए निकलता हूं तो राजस्थान की पुलिस 2 लोग थे। मैंने कहा देखो ये देश और वतन की मोहब्बत में लड़ाई है, तो सुनिए करामत गरीब नवाज की। और वो देश के खिलाफ जा रहे थे। 24 घंटे में दोनों अधिकारी जयपुर हाई कमान से सस्पेंड हो गए, क्योंकि देश की पॉलिसी के खिलाफ खाली नागरिक नहीं, अधिकारी भी नहीं जा सकता है, एमएलए भी नहीं जा सकता है, विधायक भी नहीं जा सकता है, मौलवी भी नहीं जा सकता है, चाहे पुलिस में हो या सिविल में हो। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है देश छोड़ के चला जाए। पुलिस भी वही है तो देश की वफादारी, देश की मोहब्बत के लिए देश वालों का जज्बा कराती है। विदेशियों को लाइसेंस नहीं देती है, वरना हम ऐसों की जांच भी दिल्ली से करा देते हैं और मोहर लग जाती है ख्वाजा की। तो मियाँ अपनी सर्विस और नौकरी के लिए ये भी देख लो कि सर्विस बाद में है, देश पहले है, बाद में है, देश पहले है, रंगी बाद में है, देश पहले है, ड्रेस बाद में है, देश पहले है, मौलवी बाद में है, ईमान पहले है, वतन पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मुफ्ती आज़म। रही जेल और बेल, तो यहाँ जेल भी झेल चुकी है, बेल भी झेल चुकी है। एक 18 महीने रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुजाहिद सुन्नियत कि जिसका नाम ना आए तो महाराज की सुन्नियत की तारीफ कंप्लीट ना हो सके। सरकार महबूब मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला, शेर का भाई भी ऐसा शेर कि अकेले उसने हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक जेल में जाने के बाद भी हिदायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। लिहाजा कहना क्या, जलसा करो, कॉन्फ्रेंस करो, प्रोग्राम करो, लेकिन शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करो। पॉलिसी सिस्टम क्या लेकर चलो कि हमारे पीर ने तो पहले ही कह दिया पाकिस्तान को नहीं मानते। क्रिकेट टीम आए तो एहतियात होता नहीं आने देंगे। अरे जो नहीं आए उनको नहीं आने दोगे, जो आ गए पहले उनको तो भगाओ। ये हशमती तुम्हारे साथ है। अब सफेद वाला के हम तो यहाँ के हैं, तो कहना नहीं तुम भी उसी में से कट के बने हो, तुम भी चोरों में से कट के बने हो। और आज नहीं कल नहीं परसों काफिर नाइक की तरह तुम्हारी भी जांच सब पे है। अब ये खराबी करने वालों जब जेल में रकाबी आएगी तो खराबी समझ में आ जाएगी। लिहाजा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगे से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, चाहे अलीगढ़ में, दिल्ली में, कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी इलाके में देश के खिलाफ एक्टिविटीज हो, देश के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो बरेली का हो या पीलीभीत का हो, जो पाकिस्तानी आतंकवादी गद्दारों के साथ है, न हम उसे गुरु मानते हैं, न मौलवी मानते हैं, न मुफ्ती मानते हैं। चोर का साथ देने वाला भी चोर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मलेरिया के लेवल लगा के रसियत का लेवल लगा के लूट लिया। दवाई की तरह कमीने की भी एक्सपायरी डेट होती है। हाँ, बहुत दिन मलेरिया अभी लगा के दुकानें चला के मिर्चें क्यों लगती है आपको पता है? क्रिमिनल क्यों करते हैं? जब किसी एरिया में कोई सीनियर टाइट आता है तो सारे क्रिमिनल आपस में बातें करते हैं, सर इसका ट्रांसफर कब हो रहा है, ये जानने वाला कर रहे हैं। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम हिंदुस्तान शरीयत के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमको जेल या बेल क्या, हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि हमारा ख्वाजा हिंदुस्तानी, महबूब इलाही हिंदुस्तानी, अमीर खुशबू हिंदुस्तानी, वो वैसे सुभान वारिस पाक हिंदुस्तानी, साबिर पाक हिंदुस्तानी, आला हजरत हिंदुस्तानी, मखदूम माहिम हिंदुस्तानी, बाबा बहाउद्दीन हिंदुस्तानी, हाजी अली हिंदुस्तानी। अरे जिसके पास इतनी दौलत है तो वो तो यूं कहेगा सुभान अल्लाह, कैसे आता वो का बंदा दिल वाले मेरी सरकारों के, दिल वाले मेरी सरकारों के। पुलिस वाले भी सुन ले, सीनियर साहब भी सुन ले, जूनियर साहब भी सुन ले, थाने वाले भी सुन ले, एमएलए साहब सुन ले, एलआईओ वाले सुन ले, पेपर वाले सुन ले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का लोकसभा का स्टेटमेंट। बस अपनी बात पूरा कर दो, दीदार करिए, इनको देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। शहजादे मदनी आला हजरत सरकार नासिर मिल्लत हुजूर शेर हिंदुस्तान पर दो बातों में अपनी बात पूरी कर दूं। हक पे रहने वाला न जेल की परवाह करता है न पेल की। जिस दिन जेल की बात आ गई ना तो ईमान और हिंदुस्तान की वफादारी में जेलों में जगह कम होगी, हिंदुस्तानी इतने हैं। लेकिन सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट, लोकसभा की स्पीच मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। प्रधानमंत्री इस देश का बयान देता है, मुसलमानों राइट लेफ्ट मत जाओ, उसका मफहूम से कर रहा हूँ, उस रास्ते पे मत जाओ, आतंकवाद की एक्टिविटीज को फॉलो मत करो, लंदन इंग्लैंड की जमातों को मत देखो, पाकिस्तान की जमातों को मत देखो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बयान देता है, तुमको अगर सही तरीके से इस्लाम को समझना और जानना है, क्या सुभान अल्लाह, हक तो हक है ना। हमारी बात लोकसभा में भी है, हमारी बात विधानसभा में भी है, क्योंकि हिंदू तक तेरा कायल है यार बस। हाँ, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बयान देता है कि अगर सही तरीके से इस्लाम समझना है तो सूफिया के रास्ते को फॉलो करना होगा, औलिया के तरीके पे चलना होगा। और फिर से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन औलिया का नाम लेके ये बताता है कि आए देशवासियों, ये प्रधानमंत्री का बयान सुनो, अगर हिंदुस्तान की मोहब्बत में ईमान और इस्लाम को समझना है उसकी रोशनी में शरीयत के अकॉर्डिंग, तो निजामुद्दीन के दामन को उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वहाबी आतंकवाद। हमको लाइसेंस एलिवेल ने दिया है। अभी गोवा कर्नाटक में एक जगह परमिशन कैंसिल कराया तो कैंसिल सिटी से हुआ, लेटर आ गया पीएम हाउस से। गया बेंगलोर के अंदर पूछिए इनसे, ये कर्म है किसका, अपनी औकात नहीं। दिन का भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, अब तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में हनफुर। सुनो, हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए, वरना हम सब जानते हैं बेंगलोर के अंदर जब तुम्हारे गुरु के लोग आजिज आ गए कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लाइव बात कर रहा हूं, लाइव। मैं औरतों की लड़ाई पसंद नहीं करता हूं। दरवाजा उसने खोला, उसने कभी नहीं कहा, उसने कुतिया कहा, इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कर्नाटक की धरती पे जब पुलिस ने तुम्हारे गुरु का लाइसेंस और प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तो यही मौलाना सज्जाद अशरफी को मैंने दिल्ली भेजा। तारीख उठा के देखो, यही मुफ्ती शमाइल रजा हशमती गुलामों ने तुम्हारे पीर को परमिशन दिलवाया है आपके खातिर। हम जिससे मोहब्बत करते हैं पीर के खातिर, मसलक के खातिर। और सुनो, तकरीबन 19-20 जमातों पर बोलने की पाबंदी थी, लेकिन लाइव कर्नाटक के अंदर कमिश्नर ऑफ बेंगलोर के सामने, वाइस कमिश्नर के सामने शरीयत और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यही नासिर मिल्लत का गुलाम बोल रहा था, यही शेर हिंदुस्तान का गुलाम बोल रहा था। आधे घंटे की तकरीर के बाद उस हिंदू पुलिस कमिश्नर ने उलमा के हक में और उनके गले में गुलाब के हार डाले। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे
जब तक हक वालों के साथ थे चमक रहे थे, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लिहाजा औरतों की हरकतें बंद करो, वक्त है, वक्त है। मैं अब भी मोहब्बत से पैगाम देता हूं, पाकिस्तानियों से दूर हो जाओ, आतंकवादियों से दूर हो जाओ, गद्दारों से दूर हो जाओ। अगर वहाबी देवबंदी के खिलाफ भिंडी बाजार बंद कराना जानते हो तो हम भी साथ हैं। आओ मैदान में, ये पाकिस्तानियों के खिलाफ बंबई बंद कराओ। में लोग तैयार हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, ख्वाजा का नारा लगाएंगे, आतंकवाद भगाएंगे। क्योंकि हमारे आला हजरत ने एक दो फिरते का रद्द नहीं बताया है। शरीयत ये कहती है हर कमीने का रद्द करो, हर खबीस का रद्द करो। नशा खत्म करवाएंगे, अपना नशा तो खत्म कर लो। ये गोवंडी और भिवंडी में आए नशे के खिलाफ, अरे उनका 4 घंटे का नशा है, तुम्हारा नशा तो 20 साल का है। जो अब ताजी पैसे खा खा के, बिरयानी खा के अंधे हो गए हो। ये कौम के नौजवान, ये जो पाकिस्तानी तंजीम में जा रहे हैं, कसम खुदा की, इनके ईमान को नुकसान हुआ या इनकी जान को नुकसान हुआ या इनके घर को नुकसान हुआ। यहाँ से खबर तक, खबर से हश्र तक उस मौलवी को जवाब देना पड़ेगा, उस पीर को जवाब देना पड़ेगा, उस ईमान को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरा पैगाम ये है, आज वो तौबा कर लो और कहो कि आज ले इनकी पढ़ा, आज मदद मांगी से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मैं अभी जयपुर जा रहा हूँ, मैं अभी कोटा में पूछिए, एक डॉक्टर था, उन हिंदुओं ने ये बात कही कि आपने जो हमको इस्लाम बताया, आपने जो हमको दीन बताया, हम तो ये समझते थे कि सारे मुसलमान गलत हैं, सारे मुसलमान खराब हैं। अरे भैया किसका प्रोग्राम रोकोगे? उन हिंदुओं ने कहा हम आपके साथ हैं, जयपुर में हम कराएंगे, कोटा में हम कराएंगे, राजस्थान में हम कराएंगे, क्योंकि मियां हिंदू तक तेरा कायल है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने आला हज़रत, पैगाने मुफ्ती आज़म, पैगाने शेरे सुन्नत। और सुन लीजिए एक जुमला, सीनियर हो जूनियर हो थाने में हो, कभी भी हिंदुस्तानी वफादार देश के नागरिक जो देश की मोहब्बत और आतंकवादी पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्टिविटीज कर रहे हो, एहतजाज या इज्तिमा या प्रोग्राम, और कोई अधिकारी रोके उससे इतना कह दीजिए सर मुझको सिग्नेचर करके लेटर पर लिख के दीजिए कि मैं आपका प्रोग्राम नहीं होने दूंगा, ताकि आपके आगे दिल्ली भी है और जयपुर भी है। इतनी बात यार, अरे इनको रोकना है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी, वो असदुद्दीन ओवैसी जो वहां भी आतंकवाद के साथ की बात करते हैं, अकबरुद्दीन का स्टेटमेंट है, मैं जयपुर से लेकर हिंदुस्तान के हर एरिया में और बंबई महाराष्ट्र की पुलिस और एलआईओ को यह खबर देना चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ो और तेलंगाना की तरह इनका भी इज्तिमा बैन करो, इनका प्रोग्राम बैन करो। धरती हिंदुस्तान की, किताब पाकिस्तान की, सरजमीन हिंदुस्तान की, नारा पाकिस्तान का, लोग हिंदुस्तान के, तबलीग करने वाले पाकिस्तान के। हमें जरूरत नहीं है किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूलुल्लाह, और उस अधिकारी से साइन करा के वो लेटर खाली मुझे ला के दे दीजिए कि हम देश की मोहब्बत में, देश के प्यार में आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ एक प्रोग्राम करना चाह रहे थे, जिसको ये लोग रोक रहे थे। उससे कहिए नाम लिखिए, इसमें आप मोहर लगाइए, साइन कीजिए। बाकी क्या होता है वो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में हिंदू तक तेरा कायल है। या इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये कहता है, इस हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ईमान की रोशनी में, अरे मियां गांधी ने ये कहा है, सुन लो, गांधी ने कहा कि जितना जुल्म इमाम हुसैन पे हुआ तारीख में नहीं मिलता है। तो मियां यजीदी को रोकोगे नहीं रोकोगे? ये यजीदी है, ये नजदी है, ये देवबंदी है, ये आतंकवादी है। लिहाजा मैं अपना पैगाम ये देना चाहूंगा, शरीयत की रोशनी में काम कीजिए, कानून को हाथ में मत लीजिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, थानेदार ना समझे उसको भी इस्लाम बताओ, सीनियर ना समझे उसको बताओ आला हज़रत ने क्या किया, दादा पीर ने क्या किया, मुर्शिद ने क्या किया। क्योंकि मियां आज भी हिंदू इस हिंदुस्तान का जब हर समझता है तो पीर के आगे खड़ा हो जाता है, बाबा के आगे खड़ा हो जाता है। मैं कर्नाटक से आ रहा हूं, उसका बेटा भी डीएम बना है, कलेक्टर, और मुझको वीआईपी गेस्ट हाउस में ठहराया। आने के बाद उसने फूल लेके आया और ये जुमला कहा उसने अपने बेटे से कि बेटा तू कलेक्टर बन गया है, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पे बैठने से पहले गुरबाजा शरीफ चादर पेश कर देना, हाल फूल पेश कर देना।
پاکستانی زندہ باد، پاکستانی